एवरीवन, जय स्वामीनारायण। आज हम अकाउंट में कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 4। इट्स नेम इज जनरल। नाउ वी डिस्कस नंबर 3, अदर फॉर्म ऑफ गुड्स outward. We know that apart from sales and purchase return, there are some other form for goods outward. Under these kinds of case, outward of goods is recorded at cash or at cost price. These kinds of goods outwards are disclosed as purchase reducts of business. This so this amount is credited to purchase account. It means कि यहाँ पे हमारा जो goods outward होता है वो हम कॉस्ट प्राइस से रिकॉर्ड करते हैं और उतनी ही फिगर से उतनी ही अमाउंट से हम हमारा जो परचेज अकाउंट है वो क्रेडिट करते हैं। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ गुड्स outward. First one is goods withdraw for personal use, goods distribute as sample for advertisement. Third one is goods given as donation. Fourth one is goods destroyed by fire. Fifth one is goods received as free sample. Then last sixth one is theft of goods from business. Let's discuss these types one by one. Then there is first goods withdraw for personal use. यानी कि when owner of the business has withdraw goods for his personal use, it's called drawing. Okay, so here drawings account debit will be debited and here goods goes out from business. That's why purchase account is credited with the cost price. Then number 2, goods distributed as sample for advertisement. We know that businessmen distribute goods as free sample for advertisement purpose, and this advertisement is treated as expense of business. Thus, as per the rule of expense, the advertisement expense account will be debited and goods goes out from business. That's why purchase account is credited with cost price. It means its general entry is advertisement account debit to purchase account. Then number 3, goods given as donation. It means businessmen give goods for as donation from business to religious organizations and charitable trust. Here donation is treated as expense of business. Thus, as per the rule of expense, donation account is debited and goods goes from business. That's why purchase account is credited with the cost price. It means its general entry is donation account debit to purchase account. Then number 4, good destroyed by fire. It means that accidentally fire takes place in the shop or go down of businessmen and goods get burned by fire. So this is the treated as loss of business, and so that as per the rules of debit loss, loss on goods destroyed by fire account will be debited and goods goes out of business. Thus business here purchase account is credited with the cost price of goods. It means यहाँ पे जो हमारा goods फायर में डिस्ट्रॉय हो गया है तो हमारा गुड्स का जो डिस्ट्रॉय का लॉस हुआ है वो अकाउंट डेबिट होगा और परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा कैश कॉस्ट प्राइस से. सो इट्स जनरल एंट्री इज लॉस ऑन गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट. ओके, यहाँ पे फायर के बजाय रेन में रिन्यूड हो गया यानी कि रेन में बिक गया हो और उसका जो डिस्ट्रॉय हुआ हो वो भी हम या फायर की जगह रेन लिख के यही सेम जनरल एंट्री करेंगे. ओके, देन नेक्स्ट 5, गुड्स रिसीव्ड एज फ्री सैंपल. इट मीन्स के फॉर द पर्पज ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर और होलसेलर गिव गुड्स
to the retailer as free sample. Generally, retailer has to distribute these goods to customers for free sample. In this case, there is no monetary exchange for goods. Thus, it is non-economic transactions. It will be not be recorded on the basis of accounts. But when the goods received as free sample and we sold by the retailer he would receive the cash. In this case, cash account will be debited and sales account will be credited in the books of retailer. ओके यानी कि हमें जो गुड्स का सैंपल मिला है वो फ्री में मिला है और हमने फ्री में कस्टमर को दे दी है, तो वो उसमें हमने कोई मॉनेटरी एक्सचेंज नहीं किया है फॉर द गुड्स के लिए. ओके सो ये नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कहलाएगा. बट हमें जो फ्री में सैंपल मिले वो हमने कस्टमर को बेचे हैं, उसके बदले में हमने कैश ली है, तो हमें कैश मिलती है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा. Now number 6, thefts of goods from business. It means when goods are stolen from shop or godowns of businessmen, it is loss to the business. So it is treated as a expense rules here. So as per the rules of debit, the loss. Okay, so loss on goods stolen account will be debited, and as a rule, credit what it goes out. So here goes out, goods goes out from the business. That's why purchase account is credited with the cost price of goods. ओके तो ये थे सारे 6 आउटवर्ड गुड्स आउटवर्ड्स. ओके और ये सभी की एंट्री आपको याद रखनी है कि कैसे किसमें कौन सी एंट्री होती है. सभी में परचेज अकाउंट तो क्रेडिट ही होता है और जो डेबिट होता है वो अकाउंट का नाम वो ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग हम रखते हैं. ओके let's discuss illustration 5 related to the these goods outward transactions. Okay, so there is a right general entry for the following transaction in the books of Muralidhar. Okay, so let's start this example. In this example, first given there 2014 May 1st, goods of ₹1000 is withdraw from business for personal use. यानी कि यहाँ पे पर्सनल यूज के लिए जो बिजनेसमैन है उसने गुड्स लिया है, तो जो विड्रॉ पर्सनल यूज के लिए करता है बिजनेसमैन गुड्स, तो उसकी जनरल एंट्री क्या होती है, उसका जो अकाउंट का नेम है वो ड्रॉइंग्स अकाउंट दिया जाएगा. ओके जो पर्सनल यूज के लिए ले जाता है उस अकाउंट का नेम ड्रॉइंग्स है, तो यहाँ पे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होगा और टू परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा ₹1000 से. ओके और हम नरेशन में राइट करेंगे बीइंग गुड्स ऑफ ₹1000 विड्रॉ फ्रॉम पर्सनल यूज. देन नेक्स्ट देयर इज 2014 May 3rd, goods of ₹700 destroyed by fire. It was not insured. यानी इसका इंश्योरेंस नहीं था, जो गुड्स हमारा फायर में डिस्ट्रॉय हो गया इसका. तो यहाँ पे हमें ₹700 का टोटल लॉस हुआ है. सो इसकी जनरल एंट्री हम लिखेंगे कि लॉस ऑन गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट ₹700 से हम अकाउंट क्रेडिट और डेबिट करेंगे. ओके और उसकी जो शॉर्ट नरेशन है वो लिखेंगे बीइंग गुड्स ऑफ ₹700 इज डिस्ट्रॉयड बाय फायर. देन नंबर 5 नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 2014 May 5, goods of ₹500 is stolen from business. It means यहाँ से हमारा गुड स्टोलन हो गया है. ओके so it is our loss. So loss on goods stolen account debit to purchase account because of here goods goes out from business. Okay and short narration write down that being goods of ₹500 is stolen. The next transaction given there 2014 May 8, goods stolen received a back of ₹100 on police investigation. यानी कि हमारा जो गुड्स 5 डेट को स्टोलन हो गया था तो पुलिस केस हुआ था, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन में हमें ₹100 का माल रिसीव हुआ है. ओके तो ये ₹100 का जो गुड्स है उसकी में रिसीव हुई तो परचेज अकाउंट यहाँ पे डेबिट होगा
because of goods comes in business. Okay, so here purchase account debit 100 रुपीज से, और जो हमारा लॉस था स्टोलन के कारण वो अब रिड्यूस हुआ है 100 रुपीज से, तो लॉस अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। तो इसकी जनरल एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट 100 रुपीज टू लॉस ऑन गुड्स स्टोलन अकाउंट 100 रुपीज, और हम नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स ऑफ रुपीज 100 रिसीव्ड बैक which is stolen earlier. Okay. The next transaction given there 2014 March 12. Goods of rupees 2500 is destroyed by fire. Insurance company has admitted claim for it. It means यहाँ पे हमारा जो goods है वो फायर में डिस्ट्रॉय हो गया, पर इंश्योरेंस कंपनी ने वो क्लेम हमें, हमारा जो क्लेम है वो पास कर दिया है, एडमिट कर दिया है। तो यहाँ पे हमें लॉस नहीं हुआ है, जितना भी लॉस हुआ है वो हम इंश्योरेंस कंपनी से कवर कर लेंगे। ओके, तो उसकी जनरल एंट्री ऐसे होगी कि इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 2500 रुपीज टू परचेज अकाउंट 2500 रुपीज। यहाँ पे हमने लॉस बाय फायर अकाउंट की जगह पे इंश्योरेंस कंपनी का नाम लिखा, क्यों? क्योंकि वो इंश्योरेंस कंपनी हमें देगी इसीलिए। ओके, और नरेशन में लिखेंगे बीइंग क्लेम ऑफ रुपीज 2500 is admitted by insurance company. The next transaction given there 2014 May 15. Goods of rupees 4000 is destroyed due to sinking of steamer, for which insurance company has admitted claim of 50% amount. It means यहाँ पे हमारा जो goods था वो स्टीमर के थ्रू आता था। ओके, तो उसमें क्या हुआ कि जो स्टीमर था वो सिंकिंग हो गया, यानी डूब गया, तो हमारा माल डिस्ट्रॉय हो गया। तो यहाँ पे उस माल का इंश्योरेंस था, तो इंश्योरेंस कंपनी ने हमें 50% जो हमारा डिस्ट्रॉय हुआ है उसका हमें देने का कहा है। तो 4000 का 50% यानी 2000 हमें इंश्योरेंस कंपनी हमारा क्लेम पास कर देगी। तो अब हमारा टोटल लॉस हुआ 2000, बिकॉज ऑफ 4000 से 2000 रुपीज को हमें इंश्योरेंस कंपनी देगी। ओके, सो यहाँ पे उसकी जनरल एंट्री होगी इंश्योरेंस कंपनीज अकाउंट डेबिट 2000 रुपीज बिकॉज ऑफ 50% क्लेम एडमिटेड। ओके, देन आफ्टर लॉस ऑन गुड्स डिस्ट्रॉयड ड्यू टू sinking of steamer account debit 2000 rupees. It is our actual loss, and total goods goes out from business 4000 rupees. So to purchase account 4000 rupees, और नरेशन में लिखेंगे being goods of rupees 4000 lost due to snub of steamer, insurance company admitted claim of rupees 2000. Okay. The next transaction given there 2014 May 16. Goods of rupees 500 given as donation. यहाँ पे हमने डोनेशन किया है, so donation is our expense. So donation account debit, and here goods goes from business. So purchase account credit 500 rupees से होगा, तो उसकी जनरल एंट्री होगी कि donation account debit 500 rupees टू परचेज अकाउंट क्रेडिट 500 रुपीज, और नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स ऑफ रुपीज 500 गिवन एज डोनेशन। सो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन गिवन देयर 2014 May 20. गुड्स ऑफ रुपीज 200 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल फॉर एडवर्टाइजमेंट पर्पज। हियर हमने क्या किया है कि हमारे जो कस्टमर थे उनको हमने गुड्स दिया है सैंपल के रूप में, यानी कि उसमें कोई मॉनेटरी एक्सचेंज हुआ नहीं, एक्सचेंज नहीं हुआ है, पर हमारा जो 200 रुपीज का गुड्स था वो हमारे बिजनेस में चला गया बिजनेस में से। ओके, तो ये हमारा एक्सपेंस है। सो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के लिए दिया है, तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट होगा, और गुड्स गोज फ्रॉम बिजनेस, दैट्स व्हाई परचेज अकाउंट डेबिट एट द कॉस्ट प्राइस। सो हियर इट्स जनरल एंट्री इज एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट 200 रुपीज से टू परचेज अकाउंट 200 रुपीज से क्रेडिट होगा, और नरेशन में लिखेंगे कि बीइंग गुड्स ऑफ रुपीज 200 इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। Then next transactions given there 2014 May 22. Goods of rupees 400 received as a free sample from manufacturer. यानी हमें मैन्युफैक्चरर से 400 रुपीज के सैंपल फ्री में मिले हैं।
यहाँ पे हमने वो फ्री सैंपल अभी कस्टमर को फ्री में दिए भी नहीं है और फ्री में हमने उसे बेचे भी नहीं है, यानी कि इसमें कोई भी मॉनिटरी एक्सचेंज नहीं हुआ, यानी कि मनी का कोई एक्सचेंज यहाँ पे हुआ नहीं है। सो ये नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है। ओके, सो हम पर्टिकुलर की कॉलम में लिख देंगे कि इट इज नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, सो दिस इज नॉट recorded. Then next transaction given there 2014 May 25, goods received on 22 sold and released rupees 300. It means जो 22 डेट को हमें मैन्युफैक्चरर से फ्री सैंपल मिले थे 400 रुपीज के, वो सैंपल हमने कस्टमर को बेच दिए हैं, यानी उसके यहाँ पे हमने मॉनेटरी एक्सचेंज किया है। हमें फ्री में मिला था, फ्री में नहीं दिया किसी को, हमें फ्री में मिला था और हमने वो बेच दिया। सो वो सैंपल जो बेचे उसके बदले में हमें 300 रुपीज मिले हैं। सो यहाँ पे जनरल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 300 रुपीज टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 300 रुपीज, और नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स रिसीव्ड एज अ फ्री सैंपल इज सोल्ड फॉर रुपीज 300. ओके, then next entry given there 2014 May 28 date, goods of rupees 1500 is destroyed by fire. Insurance company has admitted claim of rupees 900 and rupees 200 released from scrap of these goods. यानी कि यहाँ पे हमारा जो goods है 1500 का वो डिस्ट्रॉय हो गया है और इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिटेड किया है कि हम आपको 900 रुपीज उस गुड्स के देंगे, यानी कि हमारा क्लेम पास हुआ है 900 रुपीज का, और 200 रुपीज हमें वो जो स्क्रैप था वो बेचा तो हमें उसका 200 रुपीज मिला है, यानी कि यहाँ पे 900 रुपीज और 200 रुपीज हमें मिलता है 1500 के गुड्स के बदले में। ओके, तो यहाँ पे हमारा टोटल लॉस कितना हुआ, तो 1500 रुपीज का हमारा टोटल डिस्ट्रॉय था, उसमें से हमने 900 मिला है, इंश्योरेंस कंपनी ने दिए है, तो अब हमारा लॉस हुआ 600 रुपीज, और वो 600 रुपीज का लॉस में अभी 200 रुपीज हम कट करेंगे क्योंकि जो 1500 रुपीज का डिस्ट्रॉय माल था वो हमने बेचा है, स्क्रैप बेचा है उसका, तो उसका हमें 200 मिला है, तो अभी 200 कट करना पड़ेगा 600 में से, तो अब हमारा टोटल लॉस हुआ 400 रुपीज। ओके, तो उसकी जनरल एंट्री होती है इंश्योरेंस कंपनीज अकाउंट डेबिट 900 रुपीज, कैश अकाउंट डेबिट 200 रुपीज, दिस इज द स्क्रैप वैल्यू। Then actual loss, there is loss on goods destroyed by fire account debit 400 rupees, and here goods goes from the business, so to purchase account 1500 rupees. Okay, and we write down in narration being goods of rupees 1500 destroyed by fire, insurance company admitted claim of rupees 900 and scrap sold rupees 200 and loss of rupees 400 is recorded. The next entry there is 2014 May 30, goods of rupees 600 destroyed in rain which is sold for rupees 200. It means यहाँ पे रेन में हमारा गुड्स का डिस्ट्रॉय हुआ 600 रुपीज का गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ, बट वो गुड्स हमने बेचा 200 रुपीज में, यानी हमें 600 से 200 रुपीज ऑलरेडी मिल गए, तो हमारा एक्चुअल लॉस हुआ यहाँ पे 400 रुपीज। ओके, सो उसकी जनरल एंट्री होगी कि कैश अकाउंट डेबिट 200 रुपीज, लॉस ऑन गुड्स डिस्ट्रॉयड इन रेन अकाउंट डेबिट 400 रुपीज, टू परचेज अकाउंट 600 रुपीज, और नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स ऑफ रुपीज 600 डिस्ट्रॉयड बाय रेन सोल्ड फॉर रुपीज 200 एंड डिफरेंस ऑफ रुपीज 400 डेबिटेड एज लॉस। ओके, thank you for watching this video and have a nice day.